So hello everyone, welcome to this video. Today we are going to solve a nice question from thermodynamics from the book Physics Problems by Shashi Bhushan Tiwari. So we are given that we have helium gas as a working substance in an engine working on a thermodynamic cycle. Then certain things about the cycle are given to us and we have to deduce what the cycle looks like on the PV diagram and calculate the efficiency. So you should pause the video over here, definitely go for a solution on your own before you move on to the solution. So let us see कि कैसे solve करेंगे इस question को. So we are given that there is a thermodynamic cycle A, B, C, D, A. The cycle has 4 processes. Process AB is isobaric. Process BC is adiabatic compression. During process CD, pressure is increased, keeping the volume constant. In other words, CD is isochoric and DA is an isothermal process, right? So we are given this information. Then we are given that the gas has maximum volume at A and the ratio of maximum to minimum volume during the cycle is 8√2. तो A पे अगर maximum volume है और अगर हम A से start करें discussion तो PV diagram का shape बनाना काफ़ी simple है. So let us see कि A से अगर शुरुआत करते हैं तो वहाँ से process isobaric है, पहली process isobaric है तो वो आइसोबारिक कंप्रेशन ही हो सकता है बिकॉज ए पे वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है फॉर द एंटायर साइकिल तो ए से बी वॉल्यूम कम ही होगा. सो द प्रोसेस गोज टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट? तो दिस मच इज क्लियर. देन बी टू सी इज एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन में भी वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर बढ़ता है, राइट? सो बिकॉज वी नो द व्हाट इज द शेप ऑफ द एडियाबैटिक कर्व इन जनरल कि एडियाबैटिक कर्व कुछ इस टाइप का होता है, स्टीपर देन एन आइसोथर्मल कर्व, राइट? और वॉल्यूम कम हो रहा है तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, राइट? इट कैन नॉट गो इन एनी अदर डायरेक्शन क्योंकि अगर नीचे की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. दैट वुड हैव बीन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन कि अगर प्रेशर कम होता और वॉल्यूम इंक्रीज होता, राइट? सो बी टू सी इज ऑल्सो क्लियर. देन सी टू डी मस्ट बी अ वर्टिकल लाइन बिकॉज वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, दैट मच इज क्लियर. एंड डी टू ए इज एन आइसोथर्मल कर्व. तो द शेप ऑफ द PV diagram is not very difficult to determine. फिर हमें given है, the next fact we are given is that the ratio of maximum to minimum volume during the cycle is 8√2. तो ये ग्राफ से दिख रहा है कि C और D जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे वॉल्यूम मिनिमम है, राइट? तो वहाँ पे दोनों पे वॉल्यूम इक्वल है क्योंकि इट्स एन आइसोकोरिक प्रोसेस फ्रॉम C to D एंड वॉल्यूम इज मिनिमम ओवर देयर. सो उस मिनिमम वॉल्यूम को हम V0 मार्क कर लेते हैं, राइट? So let us mark this volume V0 and therefore जो volume A पे है that should be 8√2 V0, right? So this much is also clear. फिर given है the ratio of maximum to minimum absolute temperature is 4. The ratio of maximum to minimum absolute temperature is 4. तो maximum temperature कहाँ पे होगा? तो we have to like imagine isotherms. So isotherms क्या होती है? Isotherms are curves of constant temperature on the PV diagram, right? तो जैसे for example D2A is an isotherm क्योंकि D2A given है isothermal process है तो D2A पे तो temperature बराबर होगा because they lie on an isotherm, right? तो अगर हम ऐसे ही isotherms imagine करते हैं basically what are isotherms? So isotherms are PV equal to constant curves. So they are known as isotherms. तो इन आइसोथर्म्स पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं तो अलग अलग लाइंस इमेजिन करें ऐसी जिन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो D2A इज़ वन सच लाइन, राइट? और हर एक आइसोथर्म पे एक टेम्परेचर होता है, राइट? ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ लाइन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर. बट हम एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म जाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है. तो बेसिकली अगर आप PV डायग्राम पे आइसोथर्म्स इमेजिन करेंगे, so if you imagine isotherms like this, so basically they will be PV equal to constant type of graphs. और अगर मैं उस constant को change कर देता हूँ तो ये जो constant है ये constant क्या होगा? basically this constant will be nRT, right? So this constant will be nRT from the ideal gas equation, right? तो अगर मैं temperature को बदलता जा रहा हूँ तो ये ग्राफ मेरे को अलग अलग मिलते रहेंगे. For higher temperature, so if I draw many isotherms like this,
if I go in this direction the temperature is increasing, right? कि मतलब जो ऊपर वाले आइसोथर्म्स हैं दे आर एट हायर टेम्परेचर एंड जो नीचे वाले आइसोथर्म्स हैं वो लोअर टेम्परेचर पे हैं, राइट? तो यहाँ पे ग्राफ पे क्लियर है कि D2A वाला जो आइसोथर्म है इट इज़ द राइट मोस्ट, इट इज़ द अपर मोस्ट आइसोथर्म। तो मतलब अपर मोस्ट मतलब ये सारे आइसोथर्म्स में इस डायरेक्शन में जो सबसे ऊपर वाला आइसोथर्म होता है। सो दे यू कैन इमेजिन आइसोथर्म्स टू बी लाइक लेयर्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, राइट? तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो आपको कंटिन्यूसली बहुत सारे आइसोथर्म्स मिलेंगे। बेसिकली देयर आर इन्फिनाइटली मेनी आइसोथर्म्स, ऑफ कोर्स वी आर ओनली शोइंग अ फ्यू ऑफ देम, बट एट ईच आइसोथर्म द टेम्परेचर इज स्लाइटली डिफरेंट। तो आप इस डायरेक्शन में जाते हैं इन विच आई ड्रॉ द एरो, तो टेम्परेचर विल कीप इंक्रीजिंग ऑन द नेक्स्ट आइसोथर्म टेम्परेचर विल बी स्लाइटली मोर एंड देन स्लाइटली मोर एंड सो ऑन। तो ये क्लियर है कि D2A वाला जो आइसोथर्म है उस पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, क्योंकि अब अगर जो सारे पॉइंट्स हैं, जो साइकिल के बाकी सारे पॉइंट्स हैं, साइकिल मतलब गैस जिन जिन पॉइंट्स से गुजर रही है पीवी डायग्राम पे, वो सारे पॉइंट्स DA कर्व के नीचे वाले रीजन में लाई करते हैं। सो D2A वाले पार्ट पे जो टेम्परेचर है, उस आइसोथर्म पे जो टेम्परेचर है वो पूरी साइकिल का मैक्सिमम टेम्परेचर है। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। और मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा? तो मिनिमम टेम्परेचर या तो B पे होगा या C पे होगा। मिनिमम टेम्परेचर या तो B पे होगा या C पे होगा। तो चेक करते हैं, तो A से B टेम्परेचर कम हो रहा है, A से B टेम्परेचर कम हो रहा है बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो A टू B टेम्परेचर कम हो रहा है। B टू C में वी आर डूइंग एन एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो हाउ कैन वी डिड्यूस वेदर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? सो एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? वी नो दैट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा U plus W is 0 because delta Q is 0 for adiabatic heat exchange is 0, and therefore because it is compression work will be negative and therefore delta U will be positive. So delta U is positive for adiabatic compression for the process BC. So delta U for the process BC is definitely positive. कैसे? क्योंकि डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू 0 है और डब्ल्यू नेगेटिव है, तो डेल्टा यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तो टेम्परेचर चेंज भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज डेल्टा यू एक ऐसी चीज़ होती है, इंटरनल एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होती है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा होता है तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही होती है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, डेल्टा यू 0 होता है। सो इफ डेल्टा यू इज पॉजिटिव दैट मीन्स B टू C में टेम्परेचर बढ़ रहा है। C से D में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज इंक्रीजिंग। सो अगेन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन यू कैन डिड्यूस दैट इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट प्रेशर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर ऑल्सो हैज़ टू इंक्रीज। सो A टू B में टेम्परेचर कम हो रहा है और B और C में B से C और C से D में फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब B पे मिनिमम टेम्परेचर था कि A से B पे कंटिन्यूसली टेम्परेचर कम होता जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर है यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, तो B पे मतलब इस लाइन पे कंटिन्यूसली B तक टेम्परेचर कम हुआ और B के बाद फिर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो B पे मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। So from that we can deduce the rest of the coordinates in the graph कि अब गिवन है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का जो रेशो है वो 4 है, राइट? तो इसका मतलब A और B पे, A पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, सो लेट मी राइट ओवर हियर कि टेम्परेचर A पे मैक्सिमम है, मतलब D और A दोनों पे, एंड B पे जो टेम्परेचर है दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर, और दोनों का रेशियो इज 4. सो इफ द रेशियो इज 4 we can easily deduce the volume at B because the pressure over here is constant. The pressure over in this entire process, isobaric process है तो temperature pressure constant है. So if temperature reduces by a ratio 4 कि maximum to minimum temperature का ratio 4 है तो volume must also decrease by the same ratio.
because for isobaric volume is proportional to temperature. So volume here should be 2 root 2 V naught, which is 4 times less than volume at A. So ये जो deductions हैं, you should be comfortable with this and you should have good practice over using ideal gas equation. Ideal gas equation हर समय use होती रहती है thermodynamics के questions में. तो you should be very confident and comfortable with these small deductions, right? कि यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस था, टेम्परेचर का रेशो 4 पता चल गया तो वॉल्यूम का रेशो भी 4 होगा. सो वॉल्यूम 4 टाइम्स कम हो चुकी होगी तो 2 रूट 2 वी नॉट होगी. सो वी नो द वॉल्यूम कोऑर्डिनेट्स. नाउ लेट अस मार्क द प्रेशर कोऑर्डिनेट्स. तो फर्स्टली यहाँ पे हम प्रेशर पी नॉट ले लेते हैं, राइट. नाउ बी टू सी इज एन एडियाबैटिक कंप्रेशन. B2C is an adiabatic compression. So we have to use the adiabatic relation PV raised to power gamma. So at B we know the pressure and volume, and at C we know the volume but we want to find the pressure. So for adiabatic, so we will write for BC so we need the final pressure. So final pressure P final is equal to P naught times V naught upon V final. So this is actually I should write it this way. So न्यूमरेटर में क्या आएगा, which is न्यूमरेटर में आएगा जो प्रोसेस BC के लिए इनिशियल वॉल्यूम था, that was 2 root 2 V naught. So I will get 2 root 2 V naught divided by V naught raised to power gamma. तो ये रिलेशन आ रहा है. So I will show you how it comes over here. So we have PV raised to power gamma is equal to constant. So P final into V final raised to power gamma is equal to P initial times V initial raised to power gamma, right? So from here we can get the P final as P initial times V initial over V final raised to power gamma. So this is the relation I have used. The P initial is P naught for the process BC. The initial volume is VI जो न्यूमरेटर में है, that is 2 root 2 V naught, and final volume is V naught raised to power gamma. And what is gamma over here? Gamma over here is 5 by 3 because it is a monoatomic gas. It's a monoatomic gas. So अगर हम 2 root 2 की पावर 5 by 3 लेंगे, so 2 root 2 का क्यूब रूट क्या होता है, रूट 2 होता है. 2 root 2 का क्यूब रूट is just root 2 and raised to power 5 is root 2 की power 5 is 4 root 2. So we get 4 root 2 P naught. So the pressure over here is 4 root 2 P naught. Right? So for B to C we needed to use the adiabatic relation. There is no other way to reduce this pressure at C. और फिर D पे जो प्रेशर है वो हम D to A वाले आइसोथर्म से निकाल सकते हैं. तो आइसोथर्म के लिए P नॉट V नॉट इज P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल होता है. द प्रोडक्ट PV रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो हमें A पे प्रेशर पता है P नॉट और A पे वॉल्यूम पता है, D पे वॉल्यूम पता है और D पे प्रेशर निकालना है. तो दोनों प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए. तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है, A पे P नॉट इंटू 8 रूट 2 V नॉट, बेसिकली 8 रूट 2 इंटू P नॉट V नॉट. और यहाँ पे भी वो प्रोडक्ट 8 रूट 2 P नॉट V नॉट होना चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज 8 रूट 2 P नॉट. सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, एंड इफ इट इज़ नॉट क्लियर यू कैन go back and watch this part of the video again. Basically you need to be very clear about how we have deduced each part of this graph. The shape was quite easy to determine, but the coordinates में थोड़ा सा हमें carefully करना था और मेहनत करना था. और
अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना था. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव बिकॉज इट टीचेज यू हाउ टू यूज़ डिफरेंट थिंग्स टुगेदर. कि आइडियल गैस इक्वेशन भी यूज़ करनी है, एडियाबैटिक रिलेशन भी यूज़ करना है, आइसोथर्मल का रिलेशन भी यूज़ करना है, एंड सो ऑन. राइट. So now we are ready to calculate the efficiency of the cycle. We have the complete PV diagram with us. PV diagram बन गया है. So we can move on to calculating the work done in each step and the heat absorbed in each step. Right? So for the process AB, first of all, why are we calculating work done and delta Q for each step? Because the efficiency of a cycle. So I have written in the end over here. So what is the formula for the efficiency of the cycle? Sum of all works divided by sum of all positive heats. So जितने भी साइकिल में प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस में हमारे चार प्रोसेसेस हैं. राइट. So we have 4 processes which are part of this thermodynamic cycle. तो सब में कुछ ना कुछ हो सकता है. हीट या तो गैस एब्जॉर्ब कर रही है, या हीट गैस रिजेक्ट कर रही है, या फिर गैस पॉजिटिव वर्क कर रही है, नेगेटिव वर्क कर रही है. तो जो गैस वर्क कर रही है उसको तो हम एज इट इज़ ऐड कर देते हैं, सारे वर्क्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को. बट जो हीट एब्जॉर्ब्ड है बाय द गैस, सिर्फ उन्हीं को ऐड करते हैं. जो गैस ने हीट रिजेक्ट करी उसको हम ऐड नहीं करते. राइट. बिकॉज द हीट विच इज रिजेक्टेड बाय द गैस, वी कैन नेवर यूज दैट हीट अगेन in the same cycle. We can never recycle that heat. So we will discuss that in detail. So because we want to use this formula, we have to calculate the work done and the heat for each process of the cycle. There is no shortcut. We have to find all the quantities for each cycle. So for A to B, it's an isobaric process. तो isobaric के लिए आपको याद होना चाहिए, you should know that work done is just P delta V. तो ये P delta V कैसे आता है? Because isobaric के लिए work done, in general work done is integral of P dV, but isobaric के लिए pressure is constant, so it comes out of the integral, so therefore it becomes P delta V. So this is the work done. The pressure in the entire process is P naught. Delta V is final volume minus initial volume. Delta V हमेशा final volume minus initial volume होता है. तो final volume is 2 root 2 V naught, initial volume is 8 root 2 V naught. So we get this. Right? We have the work. Delta Q for an isobaric process is NCP delta T. This is basic result because this is the definition of CP. CP को हम ऐसे define करते हैं. Right? कि it is the specific heat in a constant pressure process. So heat exchanged in constant pressure process must be NCP delta T. और फिर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हम इस N डेल्टा T को P delta V by R से रिप्लेस कर सकते हैं. So again, I can show you over here shortly, but you should know this, that because we have PV equal to nRT and pressure remains constant, so we can just do this. We can say so we can say this. So how can we say this? So you should remember it as a result. But how can we say this? Is because we can write P into V initial. P तो constant रहेगा, उसको P लिख लेते हैं, constant pressure process, तो P तो same रहेगा. N R T initial. ऐसे ही हम final के लिए भी लिख सकते हैं, N R T final. और फिर हमने ऐसे लिख लिया तो दोनों को subtract कर सकते हैं, दोनों equations को subtract कर देंगे तो हमारे पास ये relation आ जाएगा. So for an adiabatic process, we can straight away write P delta V is equal to N R delta T from the ideal gas equation. कि मतलब इस साइड पे सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और उस साइड पे सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, दोनों साइड पे एक एक क्वांटिटी ही चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. सो NCP डेल्टा T कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एज CP by R into P delta V, क्योंकि हम टेम्परेचर के टर्म्स में वर्क नहीं कर रहे हैं, हम प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में वर्क कर रहे हैं थ्रू आउट. सो CP by R into P delta V. सो अगेन P delta V को मैंने W1 लिख दिया क्योंकि W1 P delta V ही था, तो फॉर जस्ट इजी कैलकुलेशन तो CP by R
becomes 5/2 for monoatomic gas. So I get this. So this work 1 multiplied by 5/2 हो गया ये basically. So this is the work done in the isobaric process. Then process B2C is adiabatic, right? Process B2C is adiabatic. The work done in an adiabatic process is minus of delta U, because the heat exchanged with the surrounding is 0. So from first law of thermodynamics, delta Q is 0. So therefore delta Q plus W must be 0, and therefore the work done is minus of delta U. और delta U तो हमेशा NCV delta T होता है for any process, because the internal energy only depends on the temperature of the gas. तो ये आएगा. और फिर एडियाबैटिक के लिए अगेन जैसे हमने आइसोबारिक के लिए लिखा था, हम एडियाबैटिक के लिए कैसे लिख सकते हैं? तो इस बार थोड़ा डिफरेंट है, ऑब्वियसली रिजल्ट डिफरेंट है कि अगेन PV इक्वल टू nRT है, राइट? सो PV इक्वल टू nRT है. तो अब अगर इस तरफ लिखें तो P इनिशियल V इनिशियल, अब प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों बदल रहे हैं प्रोसेस में, कोई भी एक कांस्टेंट नहीं है. तो इनिशियल कंडीशंस के लिए ऐसे लिख सकते हैं और फाइनल कंडीशन के लिए ऐसे लिख सकते हैं, राइट? और फिर दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो राइट हैंड साइड पे तो NR डेल्टा T आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल आएगा. और उसको शॉर्ट में मैं क्या लिखता हूँ, डेल्टा ऑफ PV, कि PV जो प्रोडक्ट है उसका इनिशियल वैल्यू, उस प्रोडक्ट का इनिशियल वैल्यू, उस प्रोडक्ट का सॉरी फाइनल वैल्यू माइनस प्रोडक्ट का इनिशियल वैल्यू. सो जस्ट कन्वर्टिंग, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इट्स अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर कि जो भी वर्क डेल्टा यू और डेल्टा क्यू के रिजल्ट्स होते हैं फॉर ईच ऑफ द 4 कॉमन प्रोसेसेस, जो भी कॉमन प्रोसेसेस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें टेम्परेचर के टर्म्स में याद होने चाहिए और हमें प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी याद होने चाहिए. और वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद कन्वर्टिंग फ्रॉम वन टू द अदर. और वो कन्वर्जन हमेशा आइडल गैस इक्वेशन से होता है. ये हमेशा सोचो कि अगर कोई रिजल्ट है मेरे पास, कोई फॉर्मूला है मेरे पास, उसमें टेम्परेचर आ रहा है लेकिन मुझे प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए, या प्रेशर और टेम्परेचर है मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वो कन्वर्जन हमेशा आइडल गैस इक्वेशन से ही होगा या फिर प्रोसेस इक्वेशन से होगा. देयर आर ओनली 2 वेज. प्रोसेस इक्वेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल एडियाबैटिक के लिए PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द प्रोसेस इक्वेशन. सो वी शुड बी कंफर्टेबल इन कन्वर्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर. तो ये वर्क इज माइनस ऑफ डेल्टा यू NCV डेल्टा T होता है इन जनरल किसी भी प्रोसेस के लिए. बट एडियाबैटिक के लिए N डेल्टा T कैन बी रिटन एज डेल्टा PV ओवर R फ्रॉम द आइडल गैस इक्वेशन. इनफैक्ट ये तो जनरली भी ट्रू होगा, नॉट ओनली फॉर एडियाबैटिक बट जनरली भी ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने आइडल गैस इक्वेशन लगाई तो वी डिड नॉट पुट एनी कंडीशन ऑन इट. ऑल 3 क्वांटिटीज आर चेंजिंग इन जनरल. So this is true for any process, right? So delta PV का क्या मतलब है कि P और V के जो प्रोडक्ट है उसका फाइनल वैल्यू मतलब P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल. तो फॉर द प्रोसेस BC P फाइनल V फाइनल इज एट C, तो वो हो जाएगा 4√2 P नॉट इंटू V नॉट माइनस P इनिशियल V इनिशियल, the P naught into 2√2 V naught. So by doing the maths we get work is minus 3√2 P naught V naught. And delta Q for the adiabatic process is 0. तो वो तो पता ही है, right? So moving on to the isochoric process. Isochoric process में work done 0 होता है, हमें पता है by default हमेशा 0 होता है isochoric में, because volume change is 0. Whenever volume change is 0, work is 0. क्योंकि वर्क इज इंटीग्रल P dV, एंड इफ dV इज 0 मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो इंटीग्रल P dV तो 0 होगा. एंड डेल्टा Q फॉर, बिकॉज अगेन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि अगर वर्क 0 है
तो डेल्टा क्यू और डेल्टा यू बराबर होंगे, और डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा टी होता है. एंड अगेन कन्वर्टिंग, सो आइसोकोरिक के लिए फिर से मैंने वैसे ही कन्वर्ट किया. इस बार मैं उसको V डेल्टा पी लिख रहा हूँ. सो इट इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हम कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसी सेम रिलेशन को. तो N इंटू डेल्टा टी को मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर, पहले मैंने आइसोबारिक के लिए किया, फिर एडियाबैटिक के लिए, फिर आइसोकोरिक के लिए. तो इस बार क्या करेंगे, तो P इनिशियल इंटू V, अब इस बार V नहीं चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू NRT इनिशियल, और P फाइनल इंटू V इज इक्वल टू NR इंटू T फाइनल. इस बार V नहीं चेंज हो रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं. अगेन सब्ट्रैक्टिंग द टू इक्वेशंस वी गेट V इंटू डेल्टा P इज NR डेल्टा T. तो straight from the ideal gas equation you should be able to reach over here in one step. आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए कि आप ये सीधा यहाँ से ये विजुलाइज कर लें सीधा ये फॉर्मूला कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इस तरफ प्रेशर बदल रहा है, उस तरफ टेम्परेचर बदल रहा है, देयरफॉर V डेल्टा P शुड बी इक्वल टू NR डेल्टा T. राइट. सो डेल्टा U का ये फॉर्मूला था. सो डेल्टा U का ये फॉर्मूला था, डेल्टा Q मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा U बिकॉज वर्क इज जीरो, एंड N डेल्टा T वी हैव कन्वर्टेड इनटू V delta P by R from the ideal gas equation. And now we can just put the values. V delta P मतलब V तो कॉमन है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे चल रहा है प्रोसेस, और प्रेशर फाइनल माइनस इनिशियल प्रेशर करना है. तो ग्राफ में देखते हैं, तो वॉल्यूम तो V नॉट है पूरे पे, प्रेशर फाइनल 8√2 P नॉट माइनस इनिशियल प्रेशर 4√2 P नॉट. So we get the delta Q from here. By doing the maths, CV by R becomes 3/2 for monoatomic. So we get this. Finally, आइसोथर्मल के लिए तो हमें रिजल्ट याद होता है. आइसोथर्मल के लिए डेल्टा U 0 होता है, और वर्क और Q, therefore वर्क और डेल्टा Q are equal. So I should have written delta Q over here. So work का फॉर्मूला फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस इज NRT log V फाइनल ओवर V इनिशियल, और इसमें T क्या है, T टेम्परेचर है, पूरे प्रोसेस में तो सेम टेम्परेचर रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है. और फिर अगेन मैंने यहाँ पे कन्वर्जन कैसे किया, NRT को PV से रिप्लेस कर दिया. सो अगेन आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ किया कि उसको PV से रिप्लेस कर दिया, और PV जो प्रोडक्ट है वो P, अब आप बोल सकते हैं कि P और V तो चेंज हो रहे हैं पूरे प्रोसेस में, तो इनिशियल प्रेशर डालेंगे या फाइनल प्रेशर डालेंगे, इनिशियल वॉल्यूम डालेंगे या फाइनल वॉल्यूम डालेंगे. तो जो भी डालो एक ही पॉइंट का डालो, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम दोनों डाल दो. और पीवी जो प्रोडक्ट है वो तो पूरे प्रोसेस में सेम रहता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी का जो प्रोडक्ट है वो भी तो कांस्टेंट रहेगा. तो दोनों वैल्यूज इनिशियल डाल दो या दोनों वैल्यूज फाइनल डाल दो, विल गिव यू द सेम रिजल्ट बिकॉज द प्रोडक्ट पीवी रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द आइसोथर्मल कर्व. सो आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट NRT log V final over V initial कैन ऑल्सो बी रिटन एज PV इंटू लॉग ऑफ V final over V initial. और PV क्या है, you can write P initial V initial, or you can write P final V final. You can write it like this, or you can also write it P final V final बिकॉज PV जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है. अब मिक्स नहीं कर सकते ऑब्वियसली, कि P इनिशियल इंटू V फाइनल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज दैट विल गिव अ डिफरेंट वैल्यू. तो P और V की एक ही पॉइंट पे वैल्यूज डालेंगे तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू विल बी द सेम दैट यू गेट एट सम अदर पॉइंट. सो अगेन गोइंग बैक टू द ग्राफ, we need P initial V initial for the process D2A. D2A process के लिए initial pressure is 8√2 P naught, initial volume is V naught, and V final over V initial के लिए 8√2 over V naught. So this you can read from the graph. You should draw the graph yourself, and
be comfortable in reading these values from the graph. So P initial, V initial, 8 root 2 P naught into V naught log of final volume over initial volume. So we get this. So यहाँ पे log of 8 root 2 आ रहा है, log of 8 root 2 आ रहा है. So 8 root 2 is what power of 2? So first of all ऐसे लिख सकते हैं 8 root 2. So यहाँ पे मैंने क्या किया, I'll just show you in short. So 8 root 2 is root 2 power 7. So you should be comfortable in deducing this. And then this is 2 की power 7 by 2. So this is just 7 by 2. This is 7 by 2 times log of 2. So 8 से 7 by 2 multiply हो गया, we get 28. So we get this answer for the work done in the isothermal process, and the heat exchange in the isothermal process is also the same because isothermal में delta U 0 होता है. So now we have all the results for all the processes. तो ये सारी चीज़ें करना important है. और ऐसा एक क्वेश्चन JEE एडवांस में आ सकता है, मतलब इन अ पैराग्राफ में भी थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, मतलब ए पार्ट में हो सकता है यू आर आस्क्ड समथिंग अबाउट, जैसे कि हो सकता है इसमें ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेशर एट सी, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और बोला कि सी पे प्रेशर बताओ. पीवी डायग्राम बनाने को तो नहीं आएगा एग्जाम में, वो भी आ सकता है इन ऑप्शंस, बट यू कैन बी आस्क्ड सच क्वेश्चंस कि सी पे प्रेशर बताओ या सी पे टेम्परेचर बताओ. So that can be one part, and the next part could be the efficiency, or next part could be like comment on कि इसमें work done कितना होगा किसी एक process में, B2C में work कितना होगा, and so on. So you should be comfortable in calculating all these things, and this is an excellent question for practicing how to find delta Q, delta U, and W for all three, for all kinds of common processes. ये जो 4 common process हैं, so इसमें चारों process एक एक बार आ रही हैं. That is why it is such an excellent question for practicing your basics. So finally we can calculate the efficiency also. So efficiency is sum of all works in the cycle divided by sum of all positive heats, right? तो वर्क तो हम सारा लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग द नेट वर्क. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेट वर्क. इसको sometimes you can also write it as net work over heat absorbed. हीट एब्जॉर्ब्ड का मतलब है जो सिर्फ पॉजिटिव हीट्स हैं. जो हीट रिजेक्टेड हैं उनको हम ऐड ही नहीं करेंगे, उनको हम इस इक्वेशन में लाएंगे ही नहीं. so let me show you how we will calculate it. तो सम ऑफ ऑल वर्क्स, तो पहले तो वर्क्स का सारा सबका सम कर दो. तो W1 इज -6 रूट 2, W2 इज -3 रूट 2, W3 इज 0, W4 इज 28 रूट 2 log 2. सो वी हैव एडेड ऑल -6 रूट 2, -3 रूट 2, 28 रूट 2, और सब में P नॉट V नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है ऑब्वियसली, दैट्स कॉमन. दैट इज द सम ऑफ ऑल वर्क्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे. एंड नीचे हीट एब्जॉर्ब्ड. हीट एब्जॉर्ब्ड मतलब जो सिर्फ पॉजिटिव हीट्स हैं. सो डेल्टा Q1 को हम लेंगे ही नहीं. सो वी विल नॉट इवन यूज दिस. डेल्टा Q2 0 है, डेल्टा Q3 6 रूट 2 ये करेंगे यूज, और डेल्टा Q4 28 रूट. सो ओनली 2 टर्म्स, 6 रूट 2 एंड 28 रूट 2 log 2. And then we put the values and we get this answer, which is the efficiency. In terms of a percentage, it is 41.4. So efficiency of a thermodynamic cycle is always this: sum of all works divided by sum of all positive heats. And we are only adding the positive heats because जो heat rejected है, जो जिस process में gas reject कर रही है heat, वो heat कभी वापस recover नहीं हो सकती, right? तो बेसिकली एफिशिएंसी में हम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मीन्स दैट जो हम हीट स्पेंड कर रहे हैं, जो हम हीट दे रहे हैं गैस को, वो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो हमारा खर्चा है. दैट इज समथिंग दैट वी आर
यूजिंग अप, कि हम कोई फ्यूल यूज करके, कोई हीट सोर्स यूज करके गैस को हीट कर रहे हैं, और जो वर्क हमें मिल रहा है दैट इज आवर आउटपुट, दैट इज व्हाट वी डिजायर, दैट इज व्हाट वी वांट। वर्क को निकालने के लिए ही हम पूरा इंजन को यूज कर रहे हैं। इंजन का मतलब ही ये होता है, जैसे कार इंजन होता है, कार इंजन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंजन दैट इज यूजिंग हीट। तो हम कोई फ्यूल बर्न करते हैं उसके अंदर, एंड दैट हीट, what the engine is doing is that it is absorbing heat and then it is giving you mechanical work. It is giving you mechanical work in the sense that it is moving certain machinery, moving your car, moving the wheels of the car. That is the meaning of an engine. It is also called a heat engine because it works on heat. Right? तो heat engine के लिए जो input है वो हमारा एक्सपेंडिचर है। हम वो खर्च कम से कम खर्च करना चाहते हैं, कम से कम हीट देना चाहते हैं उसको, और जो हीट वापस वो दे रहा है किसी साइकिल में, अगर वो हीट रिजेक्ट भी कर रहा है, उस हीट को हम वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते दोबारा, तो हम माइनस नहीं करेंगे उसको एक्सपेंडिचर में से। वेयर एज न्यूमरेटर में वर्क में अगर कोई किसी प्रोसेस में नेगेटिव वर्क हो रहा है तो साइक्लिक प्रोसेस है, तो किसी प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वर्क डन हमें करना पड़ रहा है। और करना क्यों पड़ रहा है? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेंटेन द साइकिल। हमें साइकिल में गैस को वापस सेम पॉइंट पे लेके भी आना है सो दैट द साइकिल कैन गो ऑन। जैसे इसमें किस प्रोसेस में वर्क डन नेगेटिव है? सो वर्क डन इज नेगेटिव इन द फर्स्ट टू प्रोसेस। तो इस प्रोसेस और इस प्रोसेस में वर्क डन नेगेटिव है। बट अगर ये दोनों प्रोसेस हम नहीं करेंगे तो गैस साइकिल को फॉलो ही नहीं कर पाएगी। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि C2D और D2A वाला प्रोसेस कर लिया बस, या C2D में वर्क 0 है तो सिर्फ D2A में वर्क मिल रहा है हमें पॉजिटिव। लेकिन D2A वाला प्रोसेस हम बार बार थोड़ी कर सकते हैं। एक बार गैस D से A चली गई, वी कैनॉट ब्रिंग इट बैक। सो वी हैव टू ब्रिंग इट बैक थ्रू सर्टन अदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द वर्क डन मे बी नेगेटिव, बट एज अ होल साइकिल में वर्क डन पॉजिटिव है। मतलब नेट में हमें वर्क डन पॉजिटिव मिल रहा है, सो वी आर हैप्पी। बट वो जो नेगेटिव वर्क्स हैं वो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे बिकॉज दैट इज ऑल्सो आवर एक्सपेंडिचर। तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग द नेगेटिव वर्क्स, वी आर बेसिकली सब्ट्रैक्टिंग द वर्क दैट वी हैव टू डू। बेसिकली ये जो नेगेटिव वर्क्स हैं दे आर द वर्क्स दैट वी हैव टू पुट इन टू द इंजन, एंड दिस इज द आउटपुट। ये वाला आउटपुट है, ये देखो बड़ा नंबर है बहुत, इन दोनों से बड़ा नंबर है। सो नेट वर्क हमें पॉजिटिव मिल रहा है। So this is how we have to calculate. This is the meaning of efficiency. So I hope you like this video. This is a very instructive question and you should definitely practice it again. आप कितना भी कर पाए इसको, खुद कर पाए नहीं कर पाए, doesn't matter. You should understand the solution. You should revise your basics, and if you are confused in something, you can go back to your theory, go back to your books from where you're studying, and revise all the formula and then try the question again on your own. आज फिर से कर सकते हैं, कुछ दिन बाद फिर से कर सकते हैं, एंड सो ऑन, सो दैट यू रिवाइज योर बेसिक्स यूजिंग दिस वेरी इंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन. So thanks for watching.